नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है। सुबह 11 बजे चर्चा की शुरुआत हुई। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने चर्चा में अपनी बात रखी। उन्होंने मांग की कि एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले और बीजेपी ने कांग्रेस पर श्रेय लेने की होड़ का आरोप लगाया। तो देखिए, सबसे पहले सोनिया गांधी ने जब अपनी बात रखी, उसके बाद निशिकांत दुबे इसका जवाब देते हुए भी नजर आए। काकोली घोष, जो कि टीएमसी की सांसद हैं, वो अभी इस वक्त लोकसभा में अपनी बात रख रही हैं। I would urge my colleagues in BJP to prioritize transformation of the mindset. It is imperative that they demonstrate genuine respect for women by aligning their actions with their words. Moreover, it is crucial that they take appropriate action against all individuals who are harming the women, showing disrespect towards the women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed, and they were in Jantar Mantar. But the perpetrator sits here today, Brij Bhushan Singh, who has not been brought to book. So if you are really interested in taking care of the women towards betterment and progress, then why don't you take action against the perpetrators? Why don't you take action against those people who have been molesting and killing women in Hathras, killing women in Unnao? Little Asifa was stoned to death in Jammu. And the wrestlers, like I said, they have been manhandled, molested. I would also like to bring here the plight, the economic non-empowerment of the 100-day laborers who have job cards. They hold the job cards all over the country through the National Rural Employment Guarantee Act. There are many women there who work in that field, but their payment has not been released yet. That is also insulting the women laborers. So are the researchers, the scientific workers of ISRO and IITs been denied their salaries. I have requested Honorable Minister here in the last session that they are not getting their stipends. The research workers, the scientists are not getting, the women researchers of IIT Kharagpur are not getting their salaries, not getting their stipend. Don't shout me down. It is a fact. Go and look through the books. The job card holders are not getting their salary. The job card holders are not getting their salary. We know that. And also, in our state, the job card holders, the poor laborers, in the IIT Kharagpur, in ISRO, the women scientists, even after sending the Chandrayaan, they are not. तो टीएमसी के सांसद काकोली घोष को आप इस वक्त सुन रहे थे। आपको बताएं कि महिला आरक्षण पर लोकसभा में जोरदार बहस हो रही है इस वक्त, और सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरह से तीखी बहस हो रही है, ये सोनिया गांधी के भाषण और उस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पलटवार को सुनकर समझा जा सकता है। सुनिए। कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं, वो मैं उदाहरण हूं। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा।
तो देखिए, आपने सुना निशिकांत दुबे को भी सुना, सोनिया गांधी को भी आपने सुना। जब सोनिया गांधी ने अपनी चर्चा की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि ये बिल तो राजीव गांधी लेकर आए थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC को भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी भी बात रखी जानी चाहिए। और इसी को लेकर देखिए, सोनिया गांधी की कुछ बड़ी बातें जो उन्होंने अपनी चर्चा के दौरान कही, वो हम आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी ने लोकसभा में जब अपने वक्तव्य की शुरुआत की, क्या क्या उन्होंने कहा, उसकी जो तमाम बड़ी बातें हैं वो पॉइंट्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले देखिए इस बात का जिक्र किया कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं। यह बड़ी बात सोनिया गांधी की तरफ से। फिर देखिए, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी संविधान संशोधन लेकर आए थे, बिल पास होने से राजीव का सपना पूरा होगा। यह बातें सोनिया गांधी की तरफ से। कहा कि यह मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है और मैं इस बिल के समर्थन में हूं। OBC, ST, SC महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया। कहा कि बिल में देरी महिलाओं के साथ अन्याय है। यह बताया जाए कि बिल आखिर लागू कब होगा, जल्दी क्यों नहीं लागू होगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल के समर्थन में है। अपना स्टैंड क्लियर किया यहां पर सोनिया गांधी ने कि हम इस बिल के समर्थन में हैं। अगर यह बिल आता है तो हमें खुशी है, हमें इस बिल को लाने से खुशी है। कांग्रेस हमेशा से यह बिल चाहती थी। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? बड़ा सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। उन्होंने कहा कि बिल लाने में देरी क्यों। अब आपको वापस लोकसभा में लिए चलते हैं, जहां पर TMC के सांसद काकोली घोष अपनी बात रख रही थी। सुनाते हैं आपको। Respect of being here in great number and also in the state assembly where important portfolios like the health, like the law, like the women's empowerment, everything is industry is being held by ladies. The home is in the hand of a lady. So why don't you respect women and give them their dues is the question. And the rest of the country shows so much of atrocity against women, where the NCRB's report says Kolkata registered the least number of rape cases, and out of these 19 major cities of the country, Kolkata has the lowest crime rate against women, whereas the other states have shown, the other states from data from NCRB, I'm not saying, it shows that in Uttar Pradesh 56,000 cases, followed by Rajasthan 40,000 cases of molestation, and in Maharashtra 39,000 and more cases. So all the states ruled by Bharatiya Janata Party, Honorable member, please conclude. Molestation against women, but it is only in Bengal that women are safe. So to keep us safe, this should be implemented and not treated as a gimmick. Thank you, sir. Shri Kiren Rijiju ji. Sir, every member of parliament has a right to make its point on this August House. Every word spoken becomes part of the parliamentary document. ये इस विभाग के मंत्री स्पष्टीकरण दे सकते हैं। Sir, अरे why are you so intolerant? आप बात कीजिए अपनी। No, sir, every word spoken is a part of the parliamentary document. We should not mislead the house. When Kakuri Dassidar was making statement, she made a very serious allegation which is completely misleading. She said that ISRO scientists are not getting regular salaries. The ISRO scientists themselves, including some of the scientists who have retired and who are regularly in touch and supporting the ISRO, have clearly said that every regular employees, including those who are pensioners, are getting regular on time salaries and pensions. And the women scientists of the ISRO have made special
mentioned that Prime Minister Narendra Modi has given the best support to the ISRO and they have made the country proud. So record must be straight, sir. चंद्रयान की सफलता पच नहीं रही है। श्रीमती बांगा गीता विश्वनाथ। Thank you, Speaker sir. Thank you for giving me this opportunity. I convey my thanks to our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu. तो देखिए, लोकसभा में आप सुन रहे हैं, लगातार चर्चा जारी है, आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताएं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, उनसे महिला आरक्षण को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने खास बातचीत की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैडम, ये बताइए कि अब विपक्ष का आरोप है कि संविधान की जो कॉपियां दी गई हैं उसमें से 2 शब्द हटा दिए गए हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट। क्या जरूरत पड़ गई इसकी? अभी ऑपोजिशन को कुछ मिला नहीं है, महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, तो मुझे लगता है ख्याली पकौड़े बोलते हैं भजिए, वो बनाना शुरू करती हैं, क्योंकि ये कर नहीं सके वो मोदी जी ने करके दिखा रहे हैं। और आज बिल पे चर्चा भी होगी और पास भी हो जाएगा, तो इन्हें कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। एक तो खिचड़ी बोलते हैं हम, तो वो खिचड़ी बन रही है अभी इनके दिमाग में। तो मुझे लगता है दे डोंट हैव एनी अदर सब्जेक्ट, उनके पास कोई ऐसी लाइन या कोई मुद्दा रहा नहीं है जिसके ऊपर वो ठोस खड़े होकर उस पर जवाब पूछ सकें सरकार को। इसलिए कुछ ना कुछ तो बनाना, तो पकोड़े बना लेते हैं। तो यही आरोप वो लगा रहे हैं कि भाई चुनाव आ रहे हैं इसलिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो बिल ले आओ, भले ही पास कभी भी हो और उसके बाद इम्प्लीमेंट कई साल बाद हो। उनकी सरकार में भी बहुत सारे चुनाव देखे हम देशवासियों ने, तब क्यों नहीं ले आए? तब क्यों नहीं इन्होंने सदन में लाए? तब क्यों नहीं इन्होंने लोकसभा में लाए? तब क्यों नहीं महिलाओं को देने के अधिकार देने के लिए इन्होंने चर्चा पे सभी महिलाओं को निमंत्रण दिया? सोनिया गांधी जी का कहना है ये हमारा बिल है। मैं तो तब मानती, मैं तो इस देश की महिला हूँ, मैं तब मानती अगर कोई ऐसा ऑपोजिशन बोल रहा है कि हमारा बिल है, जब इनके राज्य में वो पास हो जाता, इनके राज्य में महिलाओं को अधिकार मिल जाता, इनके राज्य में 180 महिला ये पार्लियामेंट में विराजमान हो जाती, तब मैं मानती ये उनका बिल है। आज जिनकी गवर्नमेंट में हम बैठे हैं और जिनकी गवर्नमेंट ने ये बिल लाया है, जिनकी गवर्नमेंट में ये बिल पे चर्चा होगी, जिनके गवर्नमेंट में ये बिल का पास होगा, उनका ये बिल रहेगा, ये तो निश्चिंत है। लड़ाई भी होगी और संसद में इस पर चर्चा भी होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। तो नवनीत राणा जो कि निर्दलीय सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। अब देखिए, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मीसा भारती, उन्होंने तो इसे जुमला करार दे दिया। कहा है कि इस बिल को लेकर सरकार जल्दबाजी में है। एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे ने मीसा भारती से खास बातचीत की है, सुनिए। अपने पुराने स्टैंड पे हैं और ये क्योंकि लोकसभा के अंदर आया है तो अभी हम मुझे पता नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या है, ओबीसी उसमें है नहीं है और शामिल किया गया है कि नहीं, एसटी नहीं। लेकिन तो एक बार देखने के बाद ही जब राज्यसभा में आएगा उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगी। आरक्षण को लेकर आरजेडी का क्या स्टैंड है? वही पुराना स्टैंड है। हम चाहते हैं कि उसमें ओबीसी महिलाएं, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन जो हमारा डिमांड था उसी पे अभी स्टिक कर रहे हैं, बट देखते हैं जब राज्यसभा में आता है उसके अंदर क्या है। और जो 2 शब्द हटाए गए हैं उस पे भी जब हमारे यहाँ राज्यसभा में आएगा उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर क्लियर कोई बयान दे पाएंगे। अच्छा, उसमें है कि सोशलिस्ट भी हटा दिया गया है, सेकुलर मैं वही कह रही हूँ ना कि मैंने अभी देखा नहीं है, क्योंकि कल ही ले डाउन हुआ है, तो और वो भी लोकसभा में हुआ है, राज्यसभा के अंदर हुआ नहीं है। तो एक बार आ जाता है उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इतना जल्दीबाजी में महिला आरक्षण बिल पे क्या कहेंगे? अब जैसे कि कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी का ज़्यादा फोकस था इतिहास बनाने में, तो उसमें शायद कहीं जल्दीबाजी हो गई, इतनी जल्दी सेशन भी बुलाया गया 4-5 दिन का। तो अब क्या बातें हैं, हम लोग हाउस के अंदर जब आएगा तो उस पर हम लोग रखेंगे। और ये लागू कब होगा? जहाँ तक मैं सुन रही हूँ कि उसमें परिसीमन होगा और उसके बाद 29 में, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये एक तरह से मोदी जी का जुमला ही साबित होगा, जो मुझे लगता है। विपक्ष का आरोप है कि जो संविधान की जो कॉपी दी गई है उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर ये सब शब्द हटा दिए गए। मैं वही कह रही हूँ ना, मैंने अभी अपने देखा नहीं है, आप जैसा कह रहे हैं, तो मैं एक बार ही हम लोग जब उसको देख लेंगे तभी कुछ इस पे बयान दे पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो ये मतलब बहुत गलत हुआ है। प्लीज, अगर ऐसा है तो इसका विरोध होगा। बिल्कुल 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 विरोध करेगी। सिर्फ आरजेडी नहीं, सारी जो इंडिया की अलायंस पार्टनर हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब इसका विरोध करेंगे। थैंक यू। अब देखिए, संसद भवन के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात चल रही है। संसद भवन में देखिए ये मुलाकात हो रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुलाकात
विदेश मंत्री एस जयशंकर से और संसद भवन में देखिए ये मुलाकात चल रही है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या बातचीत हो रही है, कैसी मुलाकात है, ये बताएं, अपडेट दें। देखिए, एस जयशंकर विदेश मंत्री पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। करीब 10 मिनट से ये मुलाकात चल रही है और ये माना जा रहा है कि कनाडा से जो रिश्ते हैं भारत के, उसको लेकर के ये बातचीत हो सकती है और 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, ये बातचीत कंटिन्यू है और इस बातचीत को लेकर के ये जो उच्च सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इस बातचीत से एस जयशंकर जो अभी ताज़ा स्थिति है कनाडा से भारत के रिश्तों को लेकर के उसको अपडेट करेंगे और उसमें जो भारत की ओर से कदम उठाए जाने हैं उसको लेकर के सलाह मशविरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री से एस जयशंकर विदेश मंत्री। बिल्कुल। और रविकांत, जिस तरीके से हमने देखा कि एक बयान सामने आता है ट्रूडो का और उसके बाद जब भारत अपना स्टैंड क्लियर करता है, जवाब देता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बदलते हुए सुर भी नजर आते हैं ट्रूडो के। तब ऐसे में ये माना जाए कि जो मुलाकात है ये इस बात को क्लियर कर देगी कि भारत का स्टैंड आने वाले समय में क्या रहने वाला है। देखिए, जो भारत का स्टैंड है वो लगातार विदेश मंत्रालय स्पष्ट करता रहा है कि भारत का स्टैंड एकदम स्पष्ट है, लेकिन जो बारीक जवाब दिए जाते हैं विदेश मंत्रालय की ओर से उनमें किस तरीके की जवाब रहे, क्या बारीकियां रहें, उसको लेकर के प्रधानमंत्री को पहले ब्रीफ करना होता है। प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद ही कोई ऑफिशियल जवाब जाता है, तो इसको लेकर के संभवतः प्रधानमंत्री से राय मशविरा कर रहे हैं विदेश मंत्री। ठीक है रविशंकर, इंतजार रहेगा कि आगे की राह भारत की क्या होगी इस मुलाकात के बाद, सभी को इंतजार रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका रविकांत, तमाम तस्वीरें और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, उधर दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही भी लगातार जारी है, वहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा चल रही है। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। तो महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी, सीधे आपको लिए चलते हैं। वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। लेकिन महिलाएं, इस देश की जनता आपकी जान गई है, आप भारी जुमलेबाज हैं, आपके किसी जुमले पर उसको भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं। बिहार में आपको जरा सीखो यार, बिहार से सीखो। अभी बता रहे हैं बिहार पहला राज्य है, ये भाषण दे रहे हैं। बिहार पहला राज्य है जो 2005 में सरकार बनी, 2006 में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। 2015 में सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी। 2016 में 35% राज्य सरकार की सारी सेवाओं में आरक्षण दिया महिलाओं को। एक साल के अंदर आपकी तरह 4.5 साल इंतजार नहीं करते रहे। कल प्रधानमंत्री जी का सुन रहे थे, आंकड़ा की बात कर रहे थे। अरे आंकड़ा तो आपको 2019 से था, काहे नहीं किया आपने? जब बेंगलोर में, पटना में, बंबई में मीटिंग हुई तो आपकी घबराहट हो गई और उस घबराहट में आप लेके आए। आपको हम बताना चाहते हैं, ये इनको क्या मालूम है दुबे जी को उत्तर प्रदेश में तो अभी सुना रही थी वो कहानी, तो इसलिए बता रहे। 1 करोड़ 30 लाख ग्रामीण महिलाओं को बिहार की सरकार ने जीविका के माध्यम से सशक्त करने का काम किया है, गरीब महिलाओं को। इसलिए आप क्या बात करिए, आपको क्या महिला सशक्तिकरण से बात मतलब है? आपको कोई महिला सशक्तिकरण से मतलब नहीं है। इस सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं, कोई भी जुमलेबाजी ये कर सकते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं नारी, आप कह रहे हैं जातीय जनगणना, आप तो देश की मांग है, आप कहिए, आप आज ऐलान करिए इस सदन में कि हम इस देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आप नहीं कराना चाहते, इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं। आप आरक्षण के विरोधी हैं। 2015 याद करिए क्या हुआ, बोले थे
आपके जो संस्थापक एक है, पीछे से जो संस्था आपको जो गाइड करती है, उसने क्या कहा था आपको? आरएसएस, ये लोग बता रहे हैं आरएसएस, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने क्या कहा? कहा कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। अरे वाह भाई, बाहर सरकार आप चला रहे हैं, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। आरक्षण कोई आपकी कृपा से है? आरक्षण आपकी कृपा से नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। तो इसलिए आप क्या बात करिएगा? आज अगर ये बिल आपने महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए। हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया है बिहार में, पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में एकल पद पर दिया है, एकल पद पर आरक्षण दिया है। ये क्या बात करेंगे? ये भी प्रवचन दे रहे हैं, एकल पद पर मिला है। और अभी जब राज्य की सरकार ने, बिहार की सरकार ने जब जाति आधारित गणना कराने का फैसला किया, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार उसके विरोध में खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट उसका विरोध कर रही है। ये इनका चेहरा है, ये इनका चेहरा है। और ये बात करते हैं नारी शक्ति का जो नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, बंधन की बात। अरे अपना बंधन कर रहे हैं आप अपना बंधन कर रहे हैं, अपने कुर्सी का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने का बंधन आप कर रहे हैं। आप वादा करते हैं, आप 2014 में वादा किए और आपके गृह मंत्री जी ने कह दिया, ये जुमला होता है, चुनाव में इसी तरह चलता रहता है। आज आप बात करिएगा नारी शक्ति बंधन का, 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है, ऐसे ही चलता है चुनाव। यही आपका चरित्र है और यही आपकी मंशा है। इस देश की जनता आपके चेहरे को पहचान गई है, आपको पहचान गई है, आपके झांसे में नहीं पड़ने वाली है। आपको सत्ता से 2024 में मुक्त होगा। वो भय आपको सता रहा है, वो भय आपको सता रहा है और इसलिए ये बिल आप लेके आए हैं, इसलिए इससे कुछ नहीं होना है। और इसे कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। श्रीमती राजश्री मलिक जी। श्रीमती राजश्री मलिक जी। मायावती महिला आरक्षण को लेकर अपनी बात रख रही हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं, सुनाते हैं मायावती क्या कह रही है। क्योंकि इस महिला आरक्षण से संबंधित संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफ़ी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा।
और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं इसको लागू करने से पहले, जो शर्तें रखी गई हैं, और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक में से या तो इन दोनों प्रावधानों को निकाले या फिर कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। इसके साथ साथ यहाँ मैं इस बात की भी केंद्र सरकार से पुनः ये अपील करती हूँ कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। यानी कि जो पहले से इनको SC ST को जो आरक्षण मिल रहा है तो जो इनको 33% SC ST की महिलाओं को जो आरक्षण देना है, तो अभी तक क्या इसमें व्यवस्था है कि जो पहले से इनको SC ST को मिल रहा है तो उसमें से 33% इनको दिया जाए महिलाओं को, और उसको 33% में जो अब लाया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है। इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है, बल्कि इनको ये आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए, 33% में दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश की OBC वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई है, और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में, यानी कि SC ST और OBC की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है, तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है कि देश में पुरुषों की तुलना में सर्व समाज की महिलाएं अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। ये वीकर सेक्शन की तो पिछड़ी हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में जो सामान्य महिलाएं वो भी काफ़ी पिछड़ी हैं। जबकि महिलाओं के मामले में वास्तव में सच्चाई तो ये है कि इन्हें अभी तक जो भी अधिकार मिले हैं, जनरली महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं
तो वे अधिकांश हिंदू कोड बिल के तहत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से ही मिले, जिसे उस समय कांग्रेसी सरकार ने इसे पूरे तौर से पास नहीं होने दिया था, जिसे फिर बाद में टुकड़ों टुकड़ों में पास किया गया। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने के मामले में पूर्व में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार द्वारा लाए गए बिल में भी इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण उस दौरान ये बिल पास नहीं हो सका था। लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए अब इस पार्टी के भी नेता यानी कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में इनको आरक्षण देने के मामले में बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की पूरे तौर से नीयत साफ नहीं है और ये सभी पार्टियां इसकी आड़ में केवल इनका वोट हासिल करने के लिए अपने अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए देश की महिलाएं ऐसी सभी पार्टियों से जरूर सावधान रहें जिनसे इन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो सुना आपने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को, और महिला आरक्षण बिल पर देखिए कांग्रेस को भी घेरा, बीजेपी को भी घेरा, कहा कि आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, आरक्षण में देरी क्यों हो रही है, जनगणना में लंबा समय लगेगा, फिर परिसीमन में लंबा वक्त लगेगा, इतना समय आखिर क्यों लग रहा है, और पुरुषों की तुलना में महिलाएं आज भी पिछड़ी हैं, इस बात का जिक्र भी मायावती ने किया। और इसी के साथ ही यह भी कहा कि किसी भी पार्टी की नीयत साफ नहीं है, केवल वोट लेने के लालच में वकालत की जा रही है इस बिल की। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा लगातार जारी है, तस्वीरें आपके सामने। तो ये बिल हमें पास करना होगा, कोई आटे शर्तें वगैरह वगैरह कुछ नहीं रहेगी। महिलाओं के लिए हमें आगे बढ़ना है, हमें एक साथ होकर बिल को पास करना है, इस प्रकार से काम होना चाहिए। सभापति जी 1 मिनट और दीजिए मुझे। यहाँ पर हमारी हिना जी बैठी है, यहाँ पर हमारी देव जी बैठी है, यहाँ पर हमारी ये दीदी बैठी है, यहाँ पर आगे भी ये सारी महिला बहुत संघर्ष करके आई है सर। मैं भी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हूँ, मुझे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन 5 बार यहाँ पर मैं अपना प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, अपने खुद के बलबूते पे कर रही हूँ। मेरे पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे बाकी के लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन मेरा संघर्ष भी उतना ही रहा है। जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया है, जिस प्रकार से यहाँ की हर एक महिला संघर्ष करके आती है, उस संघर्ष को सैल्यूट करते हुए, उस संघर्ष को प्रणाम करते हुए इस बिल को हम सब लोगों को पास करना चाहिए और मोदी जी को सक्षम नेतृत्व के आगे बढ़ने का हमारे 24 में और मौका देना है। उसके लिए हमें इकट्ठा होकर ये बिल को पास करें, यही मैं करूंगी। और शिवसेना पूरा समर्थन यहाँ पर करती है। श्रीमती ज्योतिमणि जी। भावना गवली सांसद हैं शिवसेना की, उनको आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से इस बिल को पास कराना चाहिए, सभी को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। देखिए, महिला आरक्षण पर जारी चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि महिला आरक्षण का समाजवादी पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। महिला आरक्षण पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद डिंपल यादव जी हैं। महिला आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी और सांसद डिंपल यादव का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी का यह स्टैंड है कि जिस तरह ये बिल आया, हम इसका समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि हमारी पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण मिले और इसी के साथ साथ अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी जी इतने जल्दबाजी में महिला आरक्षण बिल क्यों लाए? मैं समझती हूँ क्योंकि 10 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इंडिया का क्योंकि गठबंधन हो चुका है और ये बहुत ही फर्म और स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, इसको देखते हुए कहीं पे कुछ तो सरकार में खलबली मची हुई है। इसको लेकर ही मुझे लगता है ये लाया गया है और ये अच्छी बात है लाया गया है। हम चाहते हैं कि ये बिल आए और जहां हम SC/ST महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रहे हैं, वही हम पिछड़ी महिलाओं के और अल्पसंख्यक महिलाओं के भी हक और सम्मान की बात कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि जो संविधान की नई कॉपी दी गई है उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट ये 2 शब्द गायब हैं, तो इसको लेकर क्या कहें?
मैं समझती हूँ कि इस तरह गायब हैं शब्द, क्योंकि मैंने भी कॉपी नहीं देखी है, तो इस पे बहस होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। समाजवादी पार्टी और एनडीए इसका विरोध करेगा? इंडिया और समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट और सेकुलर जो शब्द हटाए गए हैं इसका? जी हाँ, इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।